तन्मूर्त्या शर्करायुधं समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीं श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीं वन्दे लक्ष्मीपतिं देवं शङ्खचक्रगदाधरं विद्यामूर्तिं हयग्रीवं शब्दार्थज्ञानलब्धये अमृतात्मातमेघावम् अमृताहरणं विभुं पाञ्चरात्र आगमाचार्यं वन्दे वैकुण्ठभूपतिं विश्वक्सेनं ददातार्क्षं भरद्वाजं कपिञ्जलं वसिष्ठादिमुनीन् वन्दे पाञ्चरात्रप्रवर्तकान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः अस्मत्परमेष्टिगुरुभ्यो नमः गुरुभ्यश्च तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमदीमहे वृणीमहे च तद्राद्यौ దంపతి జగదాంపతి. అందరూ ఒకసారి స్వామి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. ప్రాణాయామ విధానం తెలిసిన వారైతే ప్రాణాయామం చేసి సంకల్ప ముద్రలో కూర్చోండి. లేనివారు అంజలి ఘటించి కూర్చోండి. మాతో పాటు చెప్పగలిగితే పలకగలిగితే పలకండి, లేదంటే మధ్యలో ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండండి మనసులో. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యా పరశతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమ ఆశ్రయే. గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య విష్ణోరాజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ అపరార్తే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే అష్టావింశతమే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణదిగ్భాగే కృష్ణాకావేర్యోర్మధ్యదేశే ఆదివరాహక్షేత్రే సువర్ణముఖరీ ఉత్తరదిగ్భాగే పద్మసరోవరీ తీర్థసమీపే శుకపుర్యాగ్రహారే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారగజాంధ్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠిశ్రీ విజయాభ్యుదయ నామ సంవత్సరానామధ్యే మంగళకర క్రోధినామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శశిరఋతో మాఘమాసే కృష్ణపక్షే చవిత్యాం శుభరితో వాసరః స్థిరవాసరయుక్తాయాం ఉత్తరానక్షత్రయుక్తాయాం శ్రీ విష్ణుయోగ శ్రీ విష్ణుకరణ శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయామస్యాం శుభదిథౌ అస్య యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ యొక్క గోత్రము, మీ పెద్దవాళ్ళ పేర్లు, మీ పేరు, మీ భార్య పిల్లల పేర్లు అన్నీ కూడా ఒకసారి స్మరించుకోండి, సంకల్పం చేసుకోండి. எல்லாரும் உங்க பேரு கோத்திரம் எல்லாமே சங்கல்பம் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ஆத்துல இருக்கிறவா பேரு எல்லாமே ஒரு வாட்டி संकल्पम பண்ணிக்கோங்க. सब लोग आपका गोत्र नाम स्मरण कीजिए, संकल्प कीजिए. చెప్పండి అందరూ. మమ క్షయమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుష అర్థ సిద్ధ్యర్థం ధన కనక వస్తు వాహన అభివృద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మ్యాః పరిపూర్ణ కృపా కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం. మీరు ఏ కోరికతో అయితే అమ్మవారికి లేదా సంకల్పంతో లేదా మొక్కుబడిగా కానీ ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నారో ఆ యొక్క కోరికను ఒకసారి స్వామి అమ్మవారికి విజ్ఞాపనం చేసుకోండి. எதனால நீங்கள் இந்த கைங்கரியத்தை பண்றீங்களோ அந்த संकल्पத்தை ஒரு வாடி தாயாருக்கு விஞ்ஞாபனம் பண்ணுங்க. जिस कामना के लिए आप
ये कल्याणोत्सव कर रही है, उस कामना को एक बार माताजी को विज्ञापन कीजिए। चपंडी मम मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थम श्री अलर्मेल मंगा समेत श्रीनिवास स्वामिनः नित्य कल्याण महोत्सवम आचार्य अनेन सहायेन कारयिष्ये। అందరూ ఒకసారి స్వామి అమ్మవారికి నమస్కారం చేసుకోండి. అలమేలుమంగ వరద గోవింద గోవింద. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருப்பதி திருச்சுவனூரிலிருந்து நேரலையாக ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை பத்மாவதி தாயார் சமேத ஸ்ரீ போகஸ்ரீனிவாசன் திருக்கல்யாண வைபவத்தை சின்னத்திரையின் மூலமாக பக்தி ஸ்ரத்தையோடு அனுபவிக்க வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் காரங்கூப்பி வரவேற்கிறது. திருவேங்கடமுடையானின் அர்ச்சை திருமேனியை பக்தர்கள் அவரவர் விருப்பத்திற்கு ஏற்றவாறு வழிபட்டு தங்கள் விரும்பிய பலன்களை பெற்று மகிழ்கின்றனர். உலகில் உயரமான மரத்தில் உள்ள பழங்களை பறிக்க வேணுமானால் பல படிக்கட்டுகள் உள்ள ஏணியை உபயோகிக்கிறோம் அல்லவா? நம் அச்சுத கோவிந்தனோ வரம் தரும் கற்பக மரம் அல்லவா? இவனை நெருங்கி நாம் விரும்பும் பலனை பெற வேண்டுமென்னால் கோவிந்தனின் கருணையை பெறுவதற்கு தயாதேவியே ஒரு ஏணி போல் இருந்து, அதாயில் பக்தர்களுக்கு தாயாரின் அனுகிரகம் எனும் ஏணிப்படிகளை கொண்டு அடியவருக்கு மெய்யனாம் ஸ்ரீனிவாசன் எனும் கருணை தெய்வத்தை கற்பக மரத்தை நெருங்கி அவரவர் விரும்பும் பலன்களை குறைவர பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஏணியினால் மற்றொரு பயனும் உண்டும் நேயர்களே. கீழே இறங்கவும் முடியும். தயாதேவி தாயான பத்மாவதி தேவி அனுகூலமான வார்த்தைகளாலே பரமபுருஷனான திருவேங்கடவனை பக்தர்களின் பொருட்டு தாழ கீழே இறங்கி அவர்களின் குறைகளை தயாதேவியின் மூலமாக கேட்டு நீக்குகின்றான், அனுகிரகமும் செய்கின்றான். கிருபே கிருத ஜகத்திதய கிருபண ஜந்து சிந்தாமணே ரமா சகச்சரம் ததா ரகுதுரீணயந்தியா த்வயா வியபஜ்யத ஸ்வரித்பதி சகிருத வீக்ஷணாத் தக்ஷணாத் பிரகிருஷ்ட பகுபாத பிரசமஹேதுனா சேதுனா பகுபாதக என்கிறார். பத்மாவதி தேவி தாயாரின் குணத்தாலே அண்டி வரும் பக்தர்களில் இன்னார் இனியார், உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள், பாபம் செய்தவர்கள் இல்லாதவர்கள் என்று வேற்றுமை பாராது. தன்னை நெருங்கி வந்தவர்களை அண்டி வந்தவர்களை சரண் அடைந்தார்களை அவர்களின் நற்பலன்களை அளிக்கும் சிந்தாமணி போல திருச்சுகுனூரில் அதோ ஒளி திகழ எழுந்தருளி இருக்கிறாள். ராவணனால் உலகம் நலிவுற்ற சமயம் சீதாராமனாக அவதரித்து துஷ்டர்களை நலியச் செய்தாள். இத்திருவேங்கடவனிடத்தே இயற்கையாகவே இருக்கும் தயை என்னும் தாயாரான இவளின் சிறந்த சிபாரிசினாலன்னோ உலகோரின் குறை தீர்ந்தது. மேலும் சீதா பிராட்டியாக இவளை அடைய வேண்டும் என்றுதானே சேதுபந்தனம் என்னும் திருவனை உண்டானது. இன்றளவும் அதை கண்டாலே போதுமே, நீங்காத மகா பாப்பங்களும் கடந்து ஒழியுமே. திருவேங்கடமுடையானிடத்தே என்றும் நீங்காது நீடு நின்று நிலை பெற்ற தயாதேவி பக்தர்கள் பால் பல வகையில் உபகாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாள். இதோ தாயாரை நேர்கொண்டு நேராக சேவித்து நம் குறைகளை அவரிடத்தே முறையிட்டு நம் குறைகளை நிறைய செய்ய பெறாம். தோ அர்ச்சகசுவாமி புண்ணியா வச்சனும் மேலே விஸ்வக்சேனரின் பூஜையும் ஆவாகனமும் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இப்படி இருக்கும் தயாதேவி பக்தர்கள் பால் பல வகையில் உபகாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறாள். இதை உணர்ந்த அடியார்களே தங்களை காத்து ரட்சிக்கும் பொறுப்பை தயையின் எல்லை நிலமாம் பத்மாவதி தாயாரின் திருவடி இணைகளில் சமர்ப்பித்து கவலையற்று இருக்க வேண்டும். இவளே அன்றோ ஸ்ரீ வில்லிபுத்தூரில் சுவாமி பெரியாழ்வார் திருக்குமாரத்தியாக ஆண்டாளாக அவதரித்தது. வேதங்களாலேயே சொல்லவண்ணாத பெருமை கருணையை வடிவான ஸ்ரீ ஆண்டாளை சரண் அடைந்த சுவாமி தேசிகன் இவள் சூடி களைந்த மலர் மாலை வனமாலையை விட ஏற்றம் பெற்றது என்றும் அம்மாலையை அணிந்த ஸ்ரீ அரங்கருக்கு உள்ள ஏற்றம் உலகுக்கு தாயாக இருத்தல் முதலியவற்றை விளக்கும் முகமாக ஸ்ரீ கோதாஸ்துதி என்னும் உயர்ந்த ஸ்துதியை கோதையின் பேலே சாதித்தருளினார். வேங்கடவர்க்கே என்னை விதி என்னும் மானிடவர்க்கு என்னை பேச்சுப்பட வேண்டாம் என்று கோதைய விரும்பியதும் அதாகில் மானிட திருமணம் வேண்டாம் என்றதை பிரார்த்தித்தாள். பத்மாவதி தாயாரை ஆண்டாளாக அவதரித்து தத்புக்தமால்ய சுரபீகிருத சாரமௌளேஹே என்று வேண்டி பெற்று இவள் சூடி கொடுத்த பூமாலையை இவள் திருமுடியிலே சாற்றப்பட்டது. இங்கோ இது இந்நாளில் இக்கல்யாண உற்சவத்திலே எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிக்கும் அதாவது பத்மாவதி தாயாருக்கும் நடக்கவேறும் இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே இவை அனைத்தும் நாம் கண்டு சேவிக்கலாம், மகிழலாம். அச்சுதனும் உகந்து கோதே பவத்யரிதா கலுவை ஜெயந்தி என்று உகந்து அந்த மாலையை புஷ்ப மாலையை வைஜெயந்தி மாலையாக ஏற்றது. மாலை மாற்றல் ஆன பின்பு திருமணம் நிச்சயம் ஆனது.
ஸ்வாயம்பரம் கமபி மங்களதூரிய கோஷம் என்று மங்கள கோஷங்கள் விண்ணை பிளந்தன. ஆண்டாள் சூடிக்களைந்த பட்டால் ஆன பீதக ஆடையை சூட்டாபதேன பரிகிருஹ்ய தபோ உத்தரீயம் என்று பரிவட்டமாக தன் திருவபிஷேகத்திலே அர்ச்சகசுவாமி கட்ட அதையும் ஏற்றுக்கொள்கிறான். மேலே வரும் இந்த கல்யாண திருமண கைங்கரியங்களிலே நாம் கண்டு கழிக்கலாம். அழகிய மணவாளனான எம்பெருமான் அணிந்திருந்த புஷ்பசரம் தாயாரின் சிரசில் சாற்றப்பட்டது. அந்யோன்யமால்ய பரிவிருத்தியும் என்று பரஸ்பர மாலை மாற்றலும் நடந்தேறியது. அழகிய மணவாளனான கோவிந்தன் ஒரு பக்கம், பூமி பிராட்டியான அலமேலு ஒரு பக்கம் திவ்ய தம்பதிகளாக கொலுவிருந்து நித்தியபடியாக என்று மாறாது இருந்து பக்தர்களை அனுகிரகிக்க தாயாரின் கடைக்கண் பார்வையாலே ஈடுபட்டு பெருமானும் அவள் உள்ள கருத்தின்படி பக்தர்களை ரட்சிக்கிறான். பத்மாவதி தாயார் அனந்தமான கோவிந்தனோடு என்றும் நித்தியமாக கூடி நின்று கருணைக்கு எல்லை நிலமாக நிற்பவள். அவரவர் விரும்பும் எல்லா பலன்களையும் அளிக்கவல்ல கற்பக விருட்சமாக இன்றும் விளங்குபவள். கோவிந்தனின் சக்கரவர்த்தினியாக திகழ்பவள். இவள் என்றும் நம் பக்கலில் இருந்து காப்பாற்ற பிரார்த்தித்தே நிற்போம். ஸ்ரீ ஆண்டாள் இத்தனை கருணை கொண்டு பக்தர்கள் பால் இருக்கும்படியாக இவளுடைய ஏற்றத்தை மேலும் சுவாமி விஷகரி பதேர்ஹிருத்யா விஸ்வாவதார சகாயினி க்ஷபித நிகிலாவத்யா தேவி என்று மேலே தயாசதகத்திலே போற்றியுள்ளார். மேலே திருமண கைங்கரியத்தை நாம் கண்டு களிப்போம். नरो रश्मिभिर्मा पुनातो प्राणेन शिरोमयो भूः पृथिवी वयसापयोभिः मा पुनीता बृहद्भिः सवितस्रभिः परिषिष्ठैर्देवगन्धभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा तेन देवा अपुनता तेनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे पावमाने रथ्येति शिभिः संभृतकं रसं सर्वगुमसपूतमस्नाति मातरिश्वना पावमानेर्यो अध्येति शिभिः संभृतकं रसम् अस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमाने स्वस्तिगणीः सुदुघाहि वयस्वतीः शिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पावमानेऽर्तिसन्तुनः लोकमथ अमां कामान् समर्थयन्तुनः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तिगणीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः शिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्रजापत्यं पवित्रं सदाद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयम् ओदं ब्रह्म पुनीमहे सुनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा अप्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवस्सुवः संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेदजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. असुराणां तिस्रः पुरः आसन्न अयस्मै अवमा अथ रजता अथ हरिणीताः देवाः जेतुं नाशक्रवन्नताः उपसदेत्युपासता एव अजिगीषन् तस्मात्
आहुः च एवं वेद यः च न उपसदेत्युपासदा वै महापुरमिति महापुरं जयन्ति इति ते इषं समिति अकुर्वताग्निम् अनेकं सोमं शल्यं विष्णुं ते जनं ते अब्रुवन्नेकः इमाम् अशिष्यति इति रुद्रः इति अब्रुवन्ने रुद्रः वै क्रूरः सः अस्य तु इति सः अब्रवीत् वरं वृणये अहम् एव पशूनाम् अधिपतिरित्यधिपतिः असानि इति तस्मात् रुद्रः पशूनाम् अधिपतिरित्यधिपतिः तां रुद्रः अवेति असृजते सः तिस्रः पुरः भित्वा येभ्यः लोकेभ्यः असुरान् प्रेति अनुगतायते उपसद इत्युपासदः उपसत्यन्त इत्युपा सत्यन्ते भ्रातृव्यपरानुत्या इति भ्रातृव्यपरानुच्ये न अन्याम् आहुतिमित्याहुतिं पुरस्तादे जुहुयाते यत् अन्याहुतिमित्याहुतिं पुरस्तादे जुहुयाते अन्यते मुखं कुर्याते श्रुवेणाघारमित्याघारं येति घारयति यज्ञस्य प्रज्ञात्या इति प्राज्ञात्यै पराङ् अधिक्रम्येत्यतिक्रम्य जुहोति पराजः एभ्यः लोकेभ्यः यजमानः भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते पुनः अत्याक्रम्येत्यति आक्रम्य उपसदमित्युपसदं जुहोति प्रणुज्येति प्राणुज्य एव येभ्यः लोकेभ्यः भ्रातृव्यान् जित्वा भ्रातृव्यलोकमिति भ्रातृव्यलोकम् अभ्यारोहतीत्यभि आरोहति देवाः वै याः प्रातः उपसद इत्युपासदः उपासीदन्नित्युपासीदन् अह्नः ताभिः असुरान् प्रेति अनुदन्तायाः सायं रात्र्यै ताभिः यत् सायं प्रातरिति सायं प्रातः उपसद इत्युपासदः उपसत्यन्त इत्युपासत्यन्ते अहोरात्राभ्यामित्यहोरात्राभ्याम् एव तदेजमानः भ्रातृव्यान् प्रेति नुदते याः प्रातः याज्याः स्युः सायं प्रोणवाक्या इति पुनः वाक्याः कुर्याते अयादयामध्यायेत् यातयामाद्वायाति सः उपसद इत्युपासदः उपेति त्रयः इमे लोकाः इमान् एव लोकान् प्रीणाति षट् समिति वद्यन्ते षट् वै ऋतवः ऋतून् एव प्रीणाति द्वादशाहीने सोमे उपेति एति द्वादशा मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरमिति संवत्सरम् एव प्रीणाति चतुर्विंशतिरिति चतुर्विंशतिः समिति पद्यन्ते चतुर्विंशतिरिति चतुर्विंशतिः अर्धमासा इत्यर्थमासाः अर्धमासानित्यर्थमासान् एव प्रीणाति आराग्रामित्याराग्राम् अवान्तरदीक्षामित्यवान्तरा दीक्षाम् उपेति याते यः कामयेदा अस्मिन् मे लोके अर्धकां स्यात् इति एकम् अग्रे अथ द्वौ अथ त्रीन् अथ चतुरः एषा वै आरात्रेभ्यारा अग्राः अवान्तरदीक्षा इत्यवान्तर दीक्षा अस्मिन् एव अस्मै लोके अर्धकां भवति परो वरीयसीमिति परः अवान्तरदीक्षामित्यवान्तरदीक्षाम् उपेति यात् यः कामयेदा अमुष्मिन् मे लोके अर्धकां स्यात् इति चतुरः अग्रे अथ त्रीन् अथ द्वौ अथ एकम् एषा वै परो वरीयसीति परः वरीयसी
दीक्षा अमुस्मिन् एवास्मै लोके अर्धुकं भवति स्वर्गमिति सुभागं वै एते लोकं यन्ति ये उपसदैत्युपादतः उपयन्तीत्युपायन्ति तेषां यः नयत इत्युतो नयते हीयते एव सः न उदिति अनेषि इति सोन्नियमिति सोन्नियम् शिवायः वै स्वार्थेरामिति स्वार्था इदां यदां श्रान्तः हीयते उत सः निश्चाय सः वसति तस्मात् सकृते उन्नीयेत्युत नीयन अपरम् उदिति नयेत दध्ना उदिति नयेत एतदे वै पशूनां रूपेण एव पशून् अवेति रुन्धे यज्ञा देवेभ्यः निलागता विष्णोः रूपं कृत्वा सः पृथिवीं प्रेते अभिदते तां देवाः स्थाने सकं रभ्येति ताम् रभ्या ऐच्छन्नेताम् इन्द्रः उपर्युपरीत्युपरि अदिति अक्रामते सः अब्रवीते कः महा अयम् उपर्युपरीत्युपरि अदिति अक्रमीति इति अहम् दुर्गे दुहोगे हन्ता इति अथ कः त्वम् इति अहं दुर्गादिति दुहोगात् हर्तेत्याहर्ता इति सः अब्रवीते दुर्ग इति दुहोगे वै हन्ता अवोचताः अयं वाममोष इति वाममोषः सप्तानां गिरीणां परस्ताः देवित्तम् वेद्यम् असुराणां विभर्तितां जहीयति दुर्ग इति दुहोगे हन्ता असि इति सः दर्भपुञ्जीलमिति दर्भपुञ्जीलं भद्रकेत्युदुर्ग्य सप्तगिरीन् भित्वा ताम् अहन्ने सा अब्रवीते दुर्गादिति दुहोगात् वै आहत्ते चाहर्ताः अवोचताः एतं येति हरा इति तं येभ्यः यज्ञः एव यज्ञं येति अभरते तते वित्तं वेद्यम् असुराणाम् अविन्दन्ता तत् एकं वेद्यैः वेदित्वमिति वेदित्वम् असुराणां वै इयम् अग्रे आसीत् यावत् आसीनः परापश्यतीति परापश्यति तावत् देवानां ते देवाः अब्रुवन् अस्तु देवानः अस्याम् अपीति इति क्रियते दास्यामः इति यावत् इयं सदावृकीत्रिः परिक्रामतीति परिक्रामति तावत् दत्ता इति सः इन्द्रः सलावृकी रूपं कृत्वा इमां त्रिः सर्वदा परीति अक्रामत् तत् इमाम् अविन्दन्त यत् इमाम् अविन्दन्त तत् वेद्यै वेदित्वमिति वेदित्वं सा वै इयं सर्वा एव वेदिः यदि द्रक्ष्यामि इति तो वै अवमायेत्यवमाया गजन्ते त्रिगंशते पदानि पश्चात् धीरस्त्री भवति षट्विगंशति षटे प्राची एतदर्विगंशतिरिततो विगंशतिः पुरस्तात् तिरस्ति दश दशेति दश दशासमिति पद्यन्ते दशाक्षरे दश अक्षरा विराडिति विराट अन्नं विराडिति विराट विराजेति विराजा एव अन्नाद्यमित्यन्नाद्यम् अवेरुन्धे उदिति हन्ति यते एव अस्याः अमेध्यम् तद् अपेति हन्ति उदिति हन्ति तस्मात् ओषधयः परेति भवन्ति बर्हिः शृणाति तस्मात् ओषधयः पुनः येति भवन्ति उत्तरमित्युत्तरम्
बर्हिषः उत्तरबर्हिरित्युत्तरबर्हिः सृणाति प्रजा इति प्रजाः वै बर्हिः यजमानः उत्तरबर्हिरित्युत्तरबर्हिः यजमानम् एव अयजमानात् उत्तरमित्युत्तरं करोति तस्मात् यजमानः अयजमानात् उत्तर इत्युत्तरः यत् वै अनीशानः भारम् आदत्त इत्यादत्ते विधि वै सः लिशते यत् द्वादशान्नस्येति सा अन्नस्य उपसद इत्युपसदः स्युः तिस्रः अहीनस्य यज्ञस्य विलोमेति विलोमा क्रियेत तिस्रः एव सान्नस्येति सा अन्नस्य उपसद इत्युपसदः द्वादश अहीनस्य यज्ञस्य सवीर्यत्वायेति सवीर्यात्वाय अथ इति सलोमेति स लोमा क्रियते वत्सस्य एकः स्तनः भागी हि सः अथ एकं स्तनं व्रतम् उपेति येति अथ द्वौ अथ त्रीन् अथ चतुरः एतत् वै क्षुर भवेदिक्षुर भवे नाम व्रतं येन प्रीति जाता भ्रातृयान् नुदते प्रतीति जनिष्यमानान् इति कनिकसा एव भूयः उपेति येति चतुरः अग्रे स्तनान् व्रतम् उपेति येति अथ त्रीन् अथ द्वौ अथ एकम् एतत् वै सुजघनमिति सुजघनं नाम व्रतं तपस्यं सुवर्ग्यमिति सुवाह्यम् अथ इति प्रेति एव जायते प्रजयेति प्राजयाः पशुभिरिति पशुभिः यवागोः राजन्यस्य व्रतं क्रूरा इव वै यवागोः क्रूरः इव राजन्यः वज्रस्य रूपं समृद्ध्या इति समृद्धिः आमिक्षा वैश्यस्य भागयज्ञस्येति भागयज्ञस्य रूपं पुष्यैः पयः ब्राह्मणस्य तेजः वै ब्राह्मणः तेजः पयः तेजसा एव तेजः पयः आत्मन् धत्ते अथ इति पयसा वै गर्भाः वर्धन्ते गर्भा इव खलु वै एषः यत् दीक्षितः यत् अस्य पयः व्रतं भवति आत्मानम् एव तत् वर्धयति त्रिव्रत इति त्रिव्रतः वै मनोः आसीत् द्विव्रता इति द्विव्रताः असुराः एकव्रता इत्येकव्रताः देवाः प्रातः मध्यन्दिने सायं तत् मनोः व्रतम् आसीत् भागयज्ञस्येति भागयज्ञस्य रूपं पुष्यैः प्रातः च सायं च असुराणां निर्मध्यमिति निमध्यम् क्षुधः रूपं ततः ते परेति अभवन् मध्यन्दिने मध्यरात्र इति मध्यरात्रे देवानां ततः ते अभवन् सुवर्गमिति सुभागम् लोकम् आयन् यत् अस्य मध्यन्दिने मध्यरात्र इति मध्यरात्रे व्रतं भवति मध्यतः वै अन्नेन भुञ्जते मध्यतः एवाचते ऊर्जं दत्ते भ्रातृयाभिभूत्या इति भ्रातृव्या अभिभूत्ये भवति आत्मना परेति अस्य भ्रातृव्यः भवति गर्भः वै एषः यत् दीक्षितः योनिः दीक्षितविमितमिति दीक्षितविमितं यत् दीक्षितः दीक्षितविमितादिति दीक्षितविमितात् प्रवसेदिति प्रावसेत् यथा योनेः गर्भः स्कन्दति तादृगे एव तत् न प्रवस्तव्यमिति प्रवस्तव्यम् आत्मनः गोपीठाय एषः वै व्याघ्रः कुलगोप इति कुलगोपः यद् अग्निः तस्मात् यद् दीक्षितः प्रवसेदिति प्रवसेत् सायं
ईश्वरानोत्सायेत्यनो उत्साय सन्तोहना प्रवस्तव्यमिति प्रावस्तव्यम् आत्मनः गुप्ते दक्षिणतः सहेः एतत् वै यजमानस्य आयतनमित्यायतनं स्वे एव आयतन इत्यायतने सये अग्नेम् अभ्यावृत्येत्यभिआवृत्य देवताः एव यज्ञम् अभ्यावृत्येत्यभिआवृत्य पुरोहविषीति पुरः हविषि देवयजन इति देवायजने याजयेते यं कामयेता उपेति येनम् उत्तरयेत्युदरः यज्ञः नमेते अभीति सुवर्गमिति सुवः लोकं जयते इति एतते वै पुरोहविरिति पुरः हविः देवयजनमिति देवयजनं यस्य होता प्रातरनुवाकमिति प्रातः अनुवाकम् अनुब्रुवन्नित्यनो ब्रुवन् अग्निम् अपः आदित्यम् अभीति विपश्यतीति विपश्यति उपेति येनम् उत्तरयित्युदरः यज्ञः नमति अभीति सुवर्गमिति सुवहागम् लोकं जयति आप्ते देवयजन इति देवयजने याजयते भ्रातृव्यवन्तमिति भ्रातृव्यवन्तम् पन्थां वा अधिस्पर्शयेदित्यधि स्पर्शयेते कर्तां वा यावत् न अनसे यादवै यारथाय आप्तं देवयजनमिति देवयजनम् आप्नोति देव भ्रातृव्यं न एनं भ्रातृव्यः आप्नोति एकोन्नत इत्येक उन्नतेः देवयजन इति देवयजने याजयेते पशुकाममिति पशुकामम् एकोन्नतादित्येक उन्नतात् वै देवयजनादिति देवायजनात् अंगिरसः पशून् असृजन्त अन्तरा सदो हविर्धाने इति सदः हविर्धाने उन्नतमित्युत स्यात् एतत् वै एकोन्नतमित्येक उन्नतम् देवयजनमिति देवयजनम् पशुमानिति पशुमान् एव भवति त्र्युन्नत इति त्रि उन्नते देवयजन इति देवयजने याजयेते सुवर्गकाममिति सुवर्गकामम् त्र्युन्नतादिति त्रि उन्नतात् देवयजनादिति देवयजनात् अंगिरसः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् आयन् अन्तरा आहवनीयमित्याहवनीयं च हविर्धानमिति हविर्धानं च எழுந்தருளியிருப்பது நாம் கண்கூட கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். இதையே சுவாமி தேசிகன் தயாசதகத்திலே விஷகரி பதேர்ஹிருத்யா விஸ்வாவதார சகாயினி க்ஷபித நிகிலாவத்யா தேவி க்ஷமாதி நிஷேவிதா புவனஜனனி பும்சா போகா பவர்கவிதாயினி விதமசி பதே வியக்திம் நித்யாம் பிபர்ஷி தயே ஸ்வயம் என்கிறார். தயாதேவியே ஸ்ரீனிவாசனின் இதயத்துள் இருப்பவளான இந்த அலர்மேல மங்கை நீங்காத இடம்பெற்ற அலர்மேல் மங்கையாக தயாதேவியாகவே உறைந்திருப்பவள். இவன் அவதரிக்கும் போதெல்லாம் துணையான துணைவியாக இவளும் அவன் கூடவே அவதரிக்கிறாள். சரண் அணைந்தானில் எல்லா விதமான தோஷங்களையும் போக்குகிறாள். சகல ஐஸ்வர்யங்களுக்கும் இருப்பிடமானவள். பொறுமையே வடிவானவள். பெரிய பிராட்டி என்ற திருநாமத்தை பெற்றவள். தேவத்வே தேவதே ஹேயம் என்னும்படியாக தேவியானவள். மாதாதேவி துவம் என்னும்படியாக உலகுக்கு தாயாகி நிற்பவள். இதையே நாராயணனே விஷ்ணுவே வாசுதேவன் என்ற திருநாமங்கள் சேர்த்து சொன்னார். இல்லை என்றால் ஸ்ரீ பாஷ்யக்காரர் ஸ்ரீயோடு சேர்ந்திருக்கும் அவன் திருநாமத்திலேயே கலந்திருக்கும் ஸ்ரீனிவாசனையே நினைவு கொண்டு சாதித்துள்ளார். இவர்கள் இருவருமே ஜெகதாம்பதிகி, ஜகத்திற்கே அதிபதிகி, நம் குறைகளை தீர்ப்பவும் அதற்காகவே எழுந்தருளி இருப்பவர்கள். பண்டை நாளாலே நின் திருவருளும் பங்கையத்தாள் திருவருளும் கொண்டு நின் கோயில் செய்த்து பல்படிகால் குடி குடி வழிவந்து ஆட்செய்யும் தொண்டரோர் அருளி சோதிவாயை திறந்து உன் தாமரை கண்களால் நோக்காய் தென் திரை பொருணல் தன்பனை சூழ்ந்த திரு புளியங்குடி கிடந்தானே என்கிறார் நம்மாழ்வார்.
இவர்களோடு உள்ள உறவு மற்ற உறவுகளை தவிர நமக்கு எங்குமே ஒழிக்க ஒண்ணாது என்கிறார். ஆண்டாள் நாச்சியாரின் திருவாக்கைப் போல இவர்களோடு உள்ள உறவு நம்மை விட்டு அகலாது. நம் முன்னோர்கள் குடிக்குடியே பழைய காலத்திலிருந்தே திவ்ய தம்பதிகளுக்கு ஆளாயிருப்பதும் இவர்களிடத்தே பக்தியாக இருப்பதும் திவ்ய தம்பதிகளின் விசேஷ அருளின் பலனாகும். தாயாரின் அனுகிரகம் பெருமாளின் அனுகிரகம் பெற்று பல கைங்கரியங்களை செய்து தொண்டரான பக்தர்களுக்கு திவ்ய தம்பதிகளின் கிருப்பையோடு திருவாய் மலர்ந்து அருள அமுத மொழிகளையும் அருளாசிகளையும் எதிர்நோக்கி கல்யாண உற்சவத்தை கண்டு களித்து கொண்டிருக்கின்றனர் இதோ பக்த சேஷர்கள். ஏற்கனவே தாயாரின் கிருப்பைக்கு ஆளான பக்தர்களுக்கு பெருமாளின் திவ்ய ஆசிகளும் அருளுக்கும் தடையும் உண்டோ? அமிர்த மதனத்தின் போது தாயார் பெரிய பிராட்டியார் அவதரித்து பெருமாளின் திருமார்பிலே வந்து சேர்ந்தாள். தேவர்கள் அனைவரும் ஆச்சரியத்துடன் கண்கிடாய் இமைக்காது பார்த்து கொண்டிருந்தனராம். மகரிஷிகள் வேதம் ஸ்ரீசுக்தங்கள் விண்ணாதிர ஜபிக்க, அப்சரர்கள் நடனமாட, கங்கை நதி தீர்த்தம் கொடர, யானைகள் பொற்குடத்தில் தூய நீரை தெளித்து திருமஞ்சனமும் செய்ததாம். இந்நிகழ்ச்சியை சுவாமி தேசிகன் ஸ்ரீஸ்துதியிலே அக்ரே பர்துஹு சரசிஜமயே பத்திரபீடே நிஷண்ணாம் அம்போராசேஹே அதிகதசுதா சம்ப்ளவா துத்திதாம் துவாம் புஷ்பாசாரஸ்தகிதபுவனைஹி புஷ்கலாவர்த்தகாத்யைஹி கிளிப்தாரம்பாக கனககலசைஹி அபிஷிஞ்சித் கஜேந்திராக என்று வர்ணித்துள்ளார். மற்றொரு ஸ்லோகத்தில் சம்ஸ்ரயந்தி முகுந்தம் என்று தாயாரை வர்ணித்துள்ளார். அதாவது முகுந்தனை வரித்தவள், அடைந்தவள் என்று பொருள். மு என்பது மோட்சம் என்னும் பொருளையும், கு என்பது இப்பூவுலகை குறிக்கும் சொல் அல்லது எழுத்து. ஆக ஈக பர பலன்களை அளிக்கத்தக்கவள். இவ்விஷயத்தாலே சம்ஸ்ரயந்தி முகுந்தம் என்று போற்றுகிறது. மேலே இங்க கல்யாண உற்சவத்தை கண்டு கழியுங்கள். सदा हविर्धाने इति सदः हविर्धाने उन्नतमिच्युत नतं स्यात् एतत् वै एकोन्नतमित्येक उन्नतं देवयजनमिति देवायजनं पशुमानिति पशुमान् एव भवति त्र्युन्नत इति त्रि उन्नते देवयजन इति देवायजने याजयेते सुवर्गकाममिति सुवर्गकामं त्र्युन्नतादिति त्रि उन्नतात् वै देवयजनादिति देवायजनात् अंगिरसः सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् आयन् अन्तरा आहवनीयमित्या आहवनीयं च हविर्धानमिति हविः धानं च उन्नतमिच्युत नतं स्यात् अन्तरा हविर्धानमिति हविः धानं च सदः च अन्तरा सदः च गार्हपत्यमिति गार्हपत्यं च एतत् वै त्र्युन्नतमिति त्रि उन्नतं देवगजनमिति देवागजनं सुवर्गमिति सुवहागं एव लोकं येते प्रतिष्ठित इति प्रतिष्ठिते देवयजन इति देवायजने याजयेते प्रतिष्ठाकाममिति प्रतिष्ठाकामम् एतत् वै प्रतिष्ठितमिति प्रतिष्ठितं देवयजनमिति देवायजनं यते सदृश्यैः सत्याहारक्षां निरृच्येति निहृत्या एव अस्या यज्ञं राहयति व्यावृत्त इति वि आवृत्ते देवयजन इति देवायजने याजयेते व्यावृत्काममिति व्यावृते कामम् यं पात्रे वा तल्पे वा मीमागं सेरन् प्राचीनम् आहवनीयादित्या आहवनीयाते प्रवणमिति प्रावणं स्यात् प्रतीचीनं गार्हपत्यादिति गार्हपत्यात् एतद् वै व्यावृत्तमिति वि आवृत्तं देवयजनमिति देवायजनं इति पाप्मना भ्रातृयेण येति वर्तते न एनं पात्रे न दल्पे मीमागं सन्ते कार्ये देवयजन इति देवायजने याजयेते भूतिकाममिति भूतिकामं कार्या वै पुरुषः भवति एव उन्नतमिच्युत नतं स्यात् अन्तरा धानमिति हविः धानं च सदः च अन्तरा सदः च गार्हपत्यमिति गार्हपत्यं च एतत् वै त्र्युन्नतमिति त्रि उन्नतं देवयजनमिति देवायजनं सुवर्गमिति सुवहागं
एव लोकं येति प्रतिष्ठित इति प्रतिष्ठिते देवयजन इति देवायजने याजयेते प्रतिष्ठाकाममिति प्रतिष्ठाकामम् एतदेवै प्रतिष्ठितमिति प्रतिष्ठितं यद्गजनमिति देवायजनं यते सर्वतः समं प्रतीति एव तिष्ठति यत्र अन्याः ओषधयः विधिशक्ता इति अतिशक्ताः स्युः तत् याजयेते पशुकाममिति पशुकामम् एतदेवै पशूनां रूपेण एव पशून् अवेति रुन्धे पशुमानिति पशुमान् एव भवति निरृति गृहीते देवयजन इति देवायजने याजयेते यं कामयेत निरृत्येति निहृत्या एव अस्यायज्ञं ग्राहयेयम् इति एतदेवै निरृति गृहीतमिति निरृति गृहीतं देवयजनमिति देवायजनं यते सदृश्यैः सत्या आहारिक्षां निरृत्येति निहृत्या एव अस्यायज्ञं ग्राहयति व्यावृत्त इति व्यावृत्ते देवयजन इति देवायजने याजयेते व्यावृत्काममिति व्यावृते कामम् यं पात्रे वा तल्पे वा मीमागुंसेरन् प्राचीनम् आहवनीयाते प्रवणमिति प्रावणं स्यात् प्रतीचीनम् गार्हपत्यादिति गार्हपत्याते एतदेवै व्यावृत्तमिति व्यावृत्तं देवयजनमिति देवायजनं वीति पाप्मनः भ्रातृव्येन येति वर्तते न एनं पात्रे न तल्पे मीमागुं सन्ते कार्ये देवगजनिति देवागजने याजयेते भूतिकाममिति भूतिकामं कार्याः वै पुरुषः भवति एव तेभ्यः उत्तरवेदिरित्युत्तरवेदिः जिगुंहिः रूपं कृत्वा उभयान् अन्तरा अपक्रम्येत्यपक्रम्य अधिष्ठते ते देवाः अमन्यन्त इतरान् वै उपावर्षतीत्युपावर्षति ते इदं भविष्यन्ति इति ताम् उपेति आमन्त्रयन्त सा अब्रवीते वरं वृणैः सर्वान् मयाः कामान् वीति अश्नवथा पूर्वां तु महा अग्नेः आहुतिरित्याहुतिः अश्नवतैः इति तस्मात् उत्तरवेदिमित्युत्तरवेदिं पूर्वाम् अग्नेः व्याघारयन्तीति व्याघारयन्ति वारे व्रतमिति वारे व्रतम् हि अस्य संज्ञया परीति मिमीते मात्रा एव अस्य सा अथो इति युक्तेन एव युक्तम् अवेति रुन्धेः वित्तायनेति वित्तायने मे असि इति आह वित्ता हि एनान् आवते दिक्तायनेति दिक्तायने मे असि इति आह दिक्तान् हि एनान् आवते अवदात् महानाचितम् इति आह नाचितान् हि एनान् आवते अवदात् महाविधितम् इति आह विधितान् हि एनान् आवते विदेः अग्निः नभः नाम अग्नेः अंगिरः इति त्रिः हरति ये एव येषु लोकेषु अग्नयः तान् एव अवेति रुन्धेः तूष्णीं चतुर्थं हरति अनिरुक्तमित्यनिः उक्तम् एव अवेति रुन्धेः जगुंहिः असि महिषीः असि इति आह जगुंहिः एषा रूपं कृत्वा उभयान् अन्तरा अपक्रम्येत्यपक्रम्य अतिष्ठते उरु प्रदस्व उरु ते यज्ञपतिरिति यज्ञपतिः प्रथतामिति आह यजमानम् एव प्रजयेति प्रजया पशुभिरिति पशुभिः ध्रुवा असि इति समिति हन्ति धृत्यै देवेभ्यः कुम्भस्व देवेभ्यः कुम्भस्व इति अवेति च उक्षति प्रेति च गिरति शुद्ध्यै इन्द्रघोष इति
इन्द्रघोषः स्वाहा वसुभिरिति वसुभिः पुरस्तात् पातु इति आहादिग्भ्य इति दिग्भ्यः येवायेनाने प्रेति उक्षति देवान् च इति उत्तरवेदिरित्युत्तरवेदिः उपाववर्तीत्युपाववर्ति इह भीति जयामहे इति असुराः वज्रम् उद्यत्येत्युतो यत्या देवान् अभीति आयन्तान् इन्द्रघोष इति इन्द्रघोषः वसुभिरिति वसुभिः पुरस्तात् अपेति अनुदता मनोजवागति मनः जवाः पितृभिरिति पितृभिः दक्षिणतः प्रचेता इति प्राचेताः रुद्रैः पश्चात् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा आदित्यैः उत्तरदैत्युत्तरतः यत् एवम् उत्तरवेदिमित्युत्तरवेदीं प्रोक्षतीति प्रोक्षति दिग्भ्यैति दिग्भ्यः एव तत् यजमानः द्रुजाने प्रेति नुदते इन्द्रायतेन शालावृकेभ्यः प्रेति अयच्छते दक्षिणतः उत्तरवेद्या इत्युत्तरवेद्याः आदन्नयते प्रोक्षणीनामिति प्रोक्षणीनाम् उच्छिष्येते तदे दक्षिणतः उत्तरवेद्या इत्युत्तरवेद्यै नीति नयेते यते एव क्रूरां तते तेन सम्यगतीयां दृश्यात् तां ध्यायेत् सुजा एव येनम् अर्पयति सा उत्तरवेदिरित्युत्तरवेदिः अब्रवीत् सर्वान् मया कामान् वीति अष्टवसा इति ते देवाः कामयन्ता असुरान् भ्रातृजान् अभीति भवेम इति सा अजहवोः जिगुंहेः असि सपत्नसाहीति सपत्नसाही स्वाहा इति ते असुरान् भ्रातृजान् अभीति अभवन् ते असुरान् भ्रातृजान् अभिभूयेत्यभिभूय अकामयन्ता प्रजामिति प्राजाम् विन्देमहि इति ते अजोभोः सुगंहेः असि सुप्रजावनिरिति सुप्रजावनिः स्वाहा इति ते प्रजामिति प्राजाम् अविन्दन्ता ते प्रजामिति वित्वा अकामयन्ता पशून् विन्देमहि इति ते अजोः शृम्भिः असिराय स्फोटवनिरिराय स्फोटावनिः स्वाहा इति ते पशून् अविन्दन्ता ते पशून् वित्वा अकामयन्ता प्रतिष्ठामिति प्रदिशाम् विन्देमहि इति ते अजोः शृम्भिः असि आदित्यवनिरित्यादित्या पनिः स्वाहा इति ते इमां प्रतिष्ठामिति प्रदिशाम् अविन्दन्ता ते इमां प्रतिष्ठामिति प्रदिशाम् वित्वा अकामयन्ता देवताः उपेदीयामा इति ते अजोभोः सुगंहेः असीयेति वः देवान् देवयत इति देवायते यजमानाय स्वाहा इति ते देवताः उपेति आयन्ने पञ्चाकृत्वा व्याघारयति दिवि आघारयति पञ्चाक्षरेति पञ्चाक्षराः पङ्क्तिपाङ्गः यज्ञाय आघारयति दिवि आघारयति तस्मात् अक्षजा असवाङ्गानि प्रेति हरन्ति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै भूतेभ्यः स्वाहा इति सृजम् उदिति गृह्णाति ये एव देवाः भूताः तेषाम् तदे भागधेयमिति भागाधेयम् तान् एव तेन प्रीणाति पौतुद्रवान् परिधीनिति परिधीन परिधि ददाति येषाम् लोकानाम् विधृत्या इति विधृत्यै अग्नेः त्रयः प्रातरः आसन्ने ते देवेभ्यः हव्यम् वहन्तः प्रति अमीयन्ता सः अग्निः अभिवेदे इत्थम् पावस्याः आर्तिं यदि अरिष्यति इति सः निलायता सहायां वनस्पतिषु अवसत् ताम् पौतुद्रौ ताम् ओषधीषु ताम् सुगन्धिते जन इति सुगन्धि
ते जनेयां पशुषूतां वेत्तस्यान्तरा शृङ्गे इति तां देवताः प्रैषमिति ऐच्छन्नेताम् अन्विति अविन्दन्नेताम् अब्रुवन्ने संज्ञानं ज्ञानं प्रज्ञानं जानदभिजानते सङ्कल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपकल्प्तं क्लुप्तं यत्सम्भूतं भूतं चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादभक्तिस्तवन्नभिदवन्ने रोचनो रोचमानस्तभनस्तभमान कल्याणाः
పలుకు పెట్టని కోటపతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుపా పతి మదన సుఖ రాజ్యభారంబు నిలుపా
नाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।